Hello, dear student. How are you all? Welcome you all back here in my channel. I am Ankita Singh. Uh, I have already uploaded one lecture on this chapter, and this is the third lecture. One, I have given the introduction about your syllabus. Second, I have started the chapter, and this is the third lecture. Here we will learn about the chapter what we are having in our chapter. That I have just started the first chapter of macroeconomics and already introduced about the what book you have to take for economics for macroeconomics, B.L. Gupta and Parag Gupta. We have started the first chapter. You know what is the first chapter? The first chapter is basic concept of macroeconomics and the circular flow of income. This is the first chapter of Unit First, National Income and Aggregate and Related Aggregate. This is the first chapter, uh, basic concept of macroeconomics and circular flow of income, as you can see in your screen, on your screen. This is the first unit also of the macroeconomics, national income and related aggregate. Student, in the last lecture we have done some of the concepts that what is macroeconomics and what are the importance of it, how it is different from macroeconomics, microeconomics, difference between micro and macroeconomics we have done in the last lecture, and some of the basic concept also we have done in the last lecture. The basic concept like intermediate goods, what is intermediate goods, we have done about the intermediate goods, and I have also provided you the things or the datas regarding which you can write or complete your notes also. And final goods also we have learned in the last lecture. What is the final goods, what is the difference between intermediate and the final goods? As you can see that the front page, the screen, you can see this. We have already done what is macroeconomics, we did this. We have also done the basic concept of macroeconomics, the distinguish between micro and macro. We did this in the previous lecture. I hope you all remember this. You can see everything is written here. You can pause the video and see, and you can make the notes of it also by the help of this video. Okay, dear student, if you are having any problem, you just pause it and you can uh, see that what is the meaning of intermediate goods, what is the meaning of final goods, and how you can make your notes. You can write with the help of this also. That's why I am making the video, so that you can easily understand the chapter and make your notes very well. So, dear student, next we have done this much. As you all clear about it, you know about it, and we did we did about the intermediate goods and the final goods. What is intermediate goods? What is the final goods? What is the difference between intermediate and the final goods? We did in the last lecture. I hope you all are remember this, and I am just uh, picturizing this on your screen just because you can easily note it down in your notes also. This will help you to maintain your notes and learn something valuable from the chapter. I don't want you to be the hardest to write the notes and to do the chapter. Okay, so I am just zooming it out and provide you some of the notes. You can just note it down by pausing the video, so you can easily get everything.
So dear student, we did this much of in the previous lecture, and now we will move forward and we will see what we have to do in this lecture. We have the things like type of the final goods. How many types of final goods are there? You can see on the screen, your screen also. You can easily note it down while my explaining. कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं. वो गुड्स जो ह्यूमन अपनी सेटिस्फैक्शन के डायरेक्टली यूज़ करता है वो कंजप्शन गुड्स होते हैं. ये कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं. एक तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल. कौन से होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं और नॉन ड्यूरेबल होते हैं. टू टाइप्स के गुड्स होते हैं कंजप्शन गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मतलब काफ़ी दिनों तक चल सकते हैं, जो मतलब जिनकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होती है, जल्दी से ख़राब नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ड्यूरेबल गुड्स की एग्जांपल है जैसे रेफ्रिजरेटर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे हो गए, वो सब उनकी एक अच्छी लाइफ होती है और वो काफ़ी समय तक सही से चलते हैं. जैसे कि कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, ये सब ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं. नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि पेरिशेबल क्वांटिटी के होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी से ख़राब भी हो सकते हैं, मतलब कि उनकी ड्यूरेशन या लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं. समझ में आ रहा है सबको? नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खाने पीने वाली चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, शुगर, मिल्क, ये सब पेरिशेबल होते हैं. ये कैसे नेचर के होते हैं? पेरिशेबल नेचर के होते हैं. ये ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. ओके, तो ये ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में है. नाउ सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल होती हैं, वो दिखती नहीं हैं, ये सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं. तो कुछ ऐसे भी सर्विसेज होते हैं जो कंज्यूम किए जाती हैं, जैसे कि टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं, एडवोकेट आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स वो गुड होते हैं जो कि दूसरी चीज़ों को दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फिक्स्ड एसेट्स, वो भी हमारी कैपिटल है, और इन्वेंट्री स्टॉक, जो स्टॉक्स होते हैं वो भी हमारा एक कैपिटल है, जिसको हम यूज़ करते हैं दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये होते हैं कैपिटल गुड्स. तो फाइनल गुड्स किस तरह के होते हैं? एक कंजप्शन गुड्स जो डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, और कंजप्शन गुड्स में भी इसकी कैटेगरीज़ हैं ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज. और इसके बाद होता है फाइनल गुड्स का एक और दूसरा पार्ट है जो कि कैपिटल गुड्स कहलाता है. ये दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, मींस एज अ रॉ मटेरियल ये यूज़ किया जा रहा है, एज अ मेन मटेरियल ये यूज़ किया जा रहा है. तो ये जो है फाइनल गुड्स के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं. कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. अब हम ये जानेंगे कि ये जो कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम देख लेते हैं. कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स में डिफरेंस क्या होता है, इसके बेसिस आप देख सकते हैं. डिमांड के बेसिस पे these goods satisfy human wants directly, so such goods have direct demand. ये गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर डायरेक्टली कंजप्शन के लिए होता है, और ह्यूमन्स की डिमांड्स को डायरेक्ट फुलफ़िल करते हैं. कैपिटल गुड्स जो होते हैं ये इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, ये ह्यूमन्स वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, ये दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं इसलिए. नेक्स्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी. जो कंजप्शन गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं करते हैं,
जबकि कैपिटल गुड्स क्योंकि वो दूसरे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, इसीलिए ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कंजप्शन गुड्स की एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होती है? नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है? एक्सपेक्टेड लाइफ, कंजप्शन गुड्स की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, और ये जो कैपिटल गुड्स है इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है। जैसे मशीनरी और इक्विपमेंट, ये सब हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स में 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, एक स्टॉक वेरिएबल, एक फ्लो वेरिएबल होते हैं। ये जो स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल होते हैं, इसमें ये क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसका डिफरेंस देखते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स जो होते हैं वो आप लिखते भी जा सकते हैं साथ साथ में ही। स्टॉक वेरिएबल एक इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं जो मेजरमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का से। कोई भी स्टॉक है, स्टॉक की क्वालिटी का मेजरमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम का कहने का मतलब है कि जैसे पूरा एक ईयरली कैलकुलेटिव होता है इसमें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की 2001 में, मतलब 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ है। तो ये पूरा एक एस्टिमेटेड रहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि 1 साल के बाद, 1 साल का पूरा एस्टिमेशन है। ओके। और फ्लो क्या होता है? फ्लो जो है, फ्लो एक क्वांटिटी है इकोनॉमिक वेरिएबल की, ये भी एक क्वांटिटी है जो कि मेजर करती है इकोनॉमिक वेरिएबल को एक पीरियड ऑफ टाइम पे। पीरियड ऑफ टाइम का यहाँ मतलब होता है एक जस्ट टाइम, एक कौन सा एक ऐसा समय है, जैसे कि पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है। पर यूनिट टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल वीक, मंथ, ईयर, इस तरह से। तो ये जो है स्टॉक जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है और ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि वीक, मंथ और ईयर। ओके डियर स्टूडेंट, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका डिफरेंस क्या है स्टॉक और फ्लो का। ये आप नोट डाउन करते भी चल सकते हैं साथ ही साथ। स्टॉक और फ्लो का क्या डिफरेंस है, मीनिंग क्या है? स्टॉक वेरिएबल्स refers to that variables which is measured at a particular point of time. This I have defined already. Flow variables refers to that variable which is measured over a period of time. Then time dimension इसमें क्या होता है? It does not have a time dimension. Flow में क्या है? It has a time dimension as its magnitude can be measured over a period of time. The nature of concept क्या है? ये static concept का है, मतलब कि यहाँ पे टाइम डायमेंशन स्टॉक में नहीं होता, लेकिन फ्लो में क्या होता है, ये टाइम डायमेंशन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है यहाँ, जैसे कि पर वीक, डे, मंथ, इस तरह से। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये डायनामिक है, मतलब कि ये चेंज नहीं होता, और ये क्या है, ये चेंज हो सकता है पर डे, मंथ, इस तरह से। एग्ज़ाम्पल जैसे पॉपुलेशन इंडिया की, नंबर ऑफ कार इन दिल्ली, मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, ये सारे इसके एग्ज़ाम्पल हैं। देन फ्लो के एग्ज़ाम्पल क्या है? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग 2016, कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 2016, नेशनल इनकम, इस तरह से इसके एग्ज़ाम्पल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन होता क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक का। इकोनॉमी के अंदर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो टोटल कैपिटल स्टॉक का एडिशन होता है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। और
अब देखते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नेट इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स जो कि एक साल में प्रोड्यूस होता है, वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है। आगे हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये जो वर्ड है ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। मशीनरी की जो नॉर्मल वियरिंग एंड टियरिंग होती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। पुरानी हो गई, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, ख़राब हो गई मशीनरी, एक एक जितनी भी मशीनरी होती हैं और व्हीकल्स होते हैं, इन सब में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लैंड में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, वो एप्रिशिएट होती रहती है। मतलब कीमत घटना किसी चीज़ की, कीमत घटने के अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं। नॉर्मल वेयरिंग टेयरिंग, कुछ टूट जाए, ख़राब हो जाए, कुछ ऐसा बहुत दिनों की हो जाए तो उसमें उसकी कीमत घट जाती है। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज हो जाए तो उससे भी कीमत घट जाती है चीज़ों की। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? अगर किसी चीज़ की कीमत घट जाए वेयरिंग टेयरिंग से या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो डेप्रिसिएशन होता है, मतलब उसकी कीमत घट गई। चलिए अब देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस से क्या क्या डिफरेंस है इनमें। आपने जैसे कि देखा डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन किस किस वजह से होता है इसके बारे में आपने देखा। अब आप ये देखिए कि डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस क्या है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस क्या है, मैं वीडियो को थोड़ी थोड़ी देर के आपके स्क्रीन पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखाती जाऊंगी, आप ताकि उसको नोट डाउन करते रहिए। और ये देखिए डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस होता क्या है, इसे समझने की कोशिश करिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया कि अगर किसी चीज़ में किसी भी वस्तु में की वैल्यू में कुछ घटौती आ जाए, घटन आ जाए, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। नॉर्मल वियरिंग एंड टियरिंग से, टूटने रिपेयरिंग की वजह से या ऑब्सोलेंस से, मतलब पुराने होने की वजह से उसमें कोई कमी आ जाए तो ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस भी एक ऑसिलेंस ही होता है, या तो फिर ये अर्थक्वेक के वजह से या किसी थ्रेफ्ट की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अगर आपकी कैपिटल लॉस्ट हो जाए तो ये कैपिटल लॉस होता है। आपने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता है फर्म के, और ये जो कैपिटल लॉस है ये इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अगर भूकंप आया और कैपिटल लॉस का मतलब है बिल्डिंग अगर लॉस्ट हो गई या कुछ भी उसकी चीज़ें ख़राब हो गई, किसी भी इंडस्ट्री किसी भी कंपनी का, तो ये इफ़ेक्ट करेगा, इसीलिए ये इफ़ेक्टिव है। और नेक्स्ट देखते हैं प्रोविज़न क्या है। डेप्रिसिएशन का एक पर्टिकुलर प्रोविज़न हम बनाते हैं, उसको शो करते हैं एसेट्स की वैल्यू के डिक्रीज़ होने के लिए हम एक प्रोविज़न को मेंटेन करके उसको अकाउंट्स में शो भी करते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस के लिए कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं बनता है। कैपिटल लॉस के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो कि ये शो करे। सो डियर स्टूडेंट, इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने नोट्स भी बनाते रहिए। नोट्स बनाना मत भूलिए, नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए, जिससे आपकी ये हेल्प हो रही है। हम लोग अगर वर्क एट होम करके आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अपने घर पे बैठ के ही स्टडी फ्रॉम होम करिए, स्टडी एट होम करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियोस के लेक्चर्स को अच्छे से प्रॉपरली सुनिए। और इसके लिए आप मेंटेन रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं। लेक्चर्स सुनने के बाद इसके नोट्स कंप्लीट करिए ताकि आप और अच्छे से अच्छा कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे के जो इस चैप्टर में आगे का जो पार्ट है
वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी उसका लेक्चर इंक्लूडिंग विद द नोट्स। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा कि बेसिक कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पहले तो ये पढ़ा हमने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। हमने देखा इसके डिफरेंस क्या है, माइक्रो और मैक्रो क्यों अलग अलग हैं, इसके क्या डिफरेंस हैं, पहले हम जो पढ़ते थे और अब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है, ये हमने पढ़ा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमने समझा, कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये हमने समझा इस लेक्चर से। तो आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, ये सब क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा था इसमें, ये भी आप देखते जाइए। हमने पढ़ा कि कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, फ़्लो क्या होता है, ये हमने समझा। स्टॉक और फ़्लो का डिफरेंस क्या है ये भी हमने पढ़ा, इसको समझा। साथ ही साथ हमने देखा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन होता क्या है। और आखिरी में हमने ये देखा कि डेप्रिसिएशन के बारे में और साथ ही साथ उस डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस बिटवीन भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने सारी चीज़ों को नोट किया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझी होगी। इस वीडियो को रोक रोक के ज़रूर से इसको देखिए, नोट्स बनाइए और चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए आप इसके नोट्स मेंटेन करिए, अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। तभी आपकी भी मेहनत सफल होगी और हमारी भी मेहनत सफल होगी। इसको अच्छे से करिए और ऐसे ही सिर्फ घर बैठ के चुपचाप से बिना कुछ पढ़े लिखे ही सोचना कि हम पढ़ाई कैसे करें, तो ये गलत हो जाएगा। इससे अच्छा जो आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उसकी पूरी की पूरी हेल्प लीजिए। और इसके बाद भी अगर आप हेल्प नहीं ले सकते तो आपको अपने सरकमटेंसेस खुद ही फेस करने पड़ेंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आगे आपको मिलेंगे वो आपको खुद फेस करने पड़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।